Ladies and gentlemen, good day and welcome to Surya Roshni Limited Q3 FY25 earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of the future performance and involve risks or uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference has been recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Vista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you, and over to you, sir. Hi, welcome everybody, and thank you very much for joining us. Good evening. On this call, we are joined by Mr. B.B. Singhal, our company CFO and company secretary as well, Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel Business, Mr. Jitendra Agrawal, CEO of Lighting and Consumer Durable, Mr. Gaurav Jain, ED and COO of Steel Operations, Mr. Vasumitra Pandey, COO Lighting and Consumer Durable Business, and SJA, our Investor Relations Advisors. And I hope everyone had an opportunity to go through the financial results. And moving on to the overall financial performance highlight, we are pleased to have delivered a resilient performance in Q3 FY25 despite challenging macroeconomic conditions. During the quarter, our revenue saw a marginal decline of 4%, primarily due to an average 18% year-on-year decrease in HR coil prices. But we achieved revenue growth of 22% and EBITDA and PAT grew by 87% and 163% respectively as compared to Q2. Our lighting and consumer durable segment delivered a healthy performance with robust growth across professional lighting, decorative fans, and home appliances. This reinforces our strategic focus on innovation, quality, and customer-centric offering. On a sequential basis, we recorded double-digit growth as well. Optimizing our capacity utilization, efficient working capital management, and strategic cost rationalization have enabled us to achieve zero debt while maintaining a cash surplus fund of rupees 220 crore as of 9-month FY25. Now coming to lighting and consumer durable. Despite industry-wide challenges, including price erosion in LED segment, our proactive approach to product innovation, strong distribution network, and early market initiatives has enabled us to achieve double-digit growth year-on-year, revenue growth of 12% in this quarter. Focusing on premiumization, cost rationalization, innovation and technology, and backward integration under the PLI scheme also contributed to improve margins and overall profitability. Professional lighting delivered almost 15% year-on-year growth, benefiting from increased demand across key product categories, including LED street light, where volume nearly doubled. A healthy order book of about 150 crore in the professional lighting segment further strengthens our growth momentum. Looking forward, we remain optimistic about the business roadmap, and we are confident in delivering double-digit revenue growth for the full fiscal year in lighting. Our focus will also be on achieving double-digit EBITDA margin through a balanced approach of product mix optimization, operation excellence, and innovation. We are well positioned to drive consistent growth and reinforce our leadership in lighting and consumer durable segment. And also,
we are investing rupees 25 crore at our Gwalior facility in lighting division to set up a state-of-art domestic wire business unit of specified size and categories. Now moving on to the steel pipe and strip segment. The steel pipe and steel segment witnessed 8% year-on-year volume growth, reflecting healthy demand. However, revenue declined by 8% year-on-year to 1,417 crore, primarily due to drop in average HR coal price by 18%. That is about 10,500 rupees per ton compared to same corresponding year last year. On a sequential basis, revenue grew significantly by 25% in steel pipe business from 1,135 crore in FY25, recording a strong recovery. On quarter-on-quarter basis, EBITDA per ton improved by 78% from 2,900 in Q2 FY25. EBITDA for Q3 FY25 stood at 111 crore, declining 9% year-on-year from 121 crore. This EBITDA per ton declined to 5,163 from 6,156, primarily due to absence of inventory gain, which contributed 1,200 rupees per ton in Q3 FY24. Value-added product API spiral and galvanized pipes contributed almost 45% of total revenue for both Q3 FY25 and 9-month FY25. Export sales remain unchanged year-on-year, but globally, trade uncertainties and reservations around the U.S. tariff policies prevented a potential double-digit growth. Despite this headwind, we are expanding our presence in Middle East, Saudi Arabia, Europe, and Canada market. We currently have order book of about 600 crore in hand for oil and gas sector, water sector, and export business. With rising demand for structural pipe in infrastructure, construction, and industrial sectors, we are expanding our section pipe capacity using direct forming technology DFT to enhance efficiency. The new spiral plant in Gwalior and cold rolling expansion at Badurgarh plant are set to commence operations in February and March this year 25 respectively. And at our Hindupur facility, we are increasing capex from 75 crore to 125 crore to expand production by almost 200,000 tons per annum, focusing on large diameter 8 to 20 inch DFT mill and coated pipes for water line project and infrastructure project as well. At our Bhuj Anjar facility also, we have made an investment of about 75 crore for manufacturing of large dia pipe and DFT pipes, which will add another 60,000 tons of annual capacity and support our export business. Steel pipes are at 5 years, steel prices are at almost 5 years level low, and further declines are unlikely, providing a stable cost environment. We remain committed to expanding our product portfolio, strengthening our export business, and investing in technology, driving capacity enhancement to drive long-term growth and profitability as well. And that's it. Now I will request our CFO, Mr. B.B. Singhal ji, to share his thoughts. Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was rupees 1,868 crore as compared to rupees 1,938 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 156 crore and 90 crore as compared to rupees 158 crore and 90 crore respectively.
For 9 months of financial year 25, the revenue was 5,290 crore as compared to 5,729 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 397 crore and rupees 217 crore as compared to rupees 414 crore and rupees 225 crore respectively. In lighting and consumer durables for the quarter, the revenue stood at rupees 451 crore as against rupees 403 crore, a growth of 12% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 45 crore and rupees 35 crore, a growth of 20% and 18% respectively. For 9 months of financial year 25, the revenue stood at rupees 1,232 crore as against 1,154 crore, a growth of 7% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 115 crore and rupees 87 crore, a growth of 9% and 5% respectively. In the steel pipes and strips, during Q3 FY25, the revenue was rupees 1,417 crore as compared to rupees 1,536 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,163 compared to rupees 6,156. EBITDA and PBT stood at rupees 111 crore and rupees 86 crore as against rupees 121 crore and rupees 91 crore respectively. For 9 months of FY25, the revenue was rupees 4,061 crore as compared to 4,577 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 4,840 crore to rupees 5,224. EBITDA and PBT stood at rupees 282 crore and rupees 203 crore as against rupees 308 crore and rupees 222 crore respectively. As on December 31st, 2024, our net working capital was 57 days with a return on capital employed ROCE of 21.4% and return on equity of 15.63%. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Saransh Gupta from Swan Investments. Please go ahead. The line of the participant was on hold. We move to the next participant, Aditya Pal Singh Jaggi from MSA Capital Partner. Please go ahead with your question. Hi, am I audible? Yes. Yeah. Thank you so much for the opportunity. Sir, wanted to quickly understand from you that the previous con call, that is Q2 con call, we had said that we can achieve 9 lakh tons volume this year, 9 lakhs and a few thousand tons this year. But for us to achieve that, we would really need to grow our volumes by 40-45% YOY. So that is my first question, that do you think that this 9 lakh is achievable or do you want to revise the guidance for this FY25? Okay, next. Sir, next would be that again, in the last couple of conferences that in FY26 we can grow our volume to 12 lakh tons, 1.2 million tons. But revenue would grow by 10 to 12%. From 9 to 12 lakh, we are growing 33% ton, but the revenue and volume are not matching. So just wanted to understand, wanted your clarification that are these numbers, is my understanding correct? चलिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग वॉल्यूम,
अभी तक हम लोग करीब 6,20,000 टन नेट कर चुके हैं और Q4 के अंदर में एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 2.65 लाख टन करेंगे। सो ऑलमोस्ट 9 लाख क्रॉस तो नहीं करेंगे, जो 8.8, 8.9 के आसपास टन हम लोग पूरे साल में करेंगे। और इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम में 2-3 रीजन से थोड़ी दिक्कत आई है। एक तो क्योंकि पूरा साल जो है इलेक्शन ईयर होने की वजह से जो है जनरल इलेक्शन की वजह से थोड़ा एपीआई सेगमेंट के अंदर में थोड़ा वॉल्यूम के अंदर में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था वो कम दिखा। दूसरा रीजन था कि ये जो ओवरऑल ग्लोबल जो एक क्राइसिस चल रहा है काफी टाइम से, उसकी वजह से भी थोड़ा एक्सपोर्ट के अंदर में जितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। बट अदरवाइज हम लोग उस लाइन पे है। बट फिर भी वॉल्यूम में थोड़ा अगर जो हमारा टारगेट था या जो हमारी बजटेड थी, भले उसमें थोड़ा स्लाइटली हम लोग डीप रहे, उसके बावजूद भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी को और पर टन ग्रोथ को हमने मेंटेन रखा है और पिछले साल के कंपैरिजन में हम उसको सरपास ही करेंगे स्लाइटली। सो नाउ जहां तक आपने FY26 की बात की, उसके अंदर में क्योंकि हमारा ऑलरेडी 200 करोड़ का जो है कैपेक्स ऑलमोस्ट पूरा हो गया है इन द कोल्ड रोलिंग मिल, और कुछ ग्वालियर के अंदर में इसी महीने से स्पाइरल प्लांट शुरू हो रहा है जिसका करीब साल भर में 60,000 टन का वॉल्यूम आएगा। और सिमिलरली कैपेक्स का काम ऑलरेडी अंजार में भी चल रहा है, इंदुपुर में भी चल रहा है। सो ये और टोटल हमारा अगले 2 साल का जो 500 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है, उसके बाद हमारा वॉल्यूम जो एग्जिस्टिंग करीब 12 लाख टन है वो बढ़ के करीब 19 लाख टन होगा। तो मतलब अगले साल तक हम लोग को जो है 12 लाख टन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट स्टील में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि HR कोल के प्राइसेस के ऊपर में, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर में, और अभी कुछ हद तक जो है मुझे लगता है फॉर टाइम बिंग जो है ट्रम्प के ऊपर में भी काफी कुछ डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के साथ जो यूएस के संबंध थे वो इतने खराब नहीं थे और इम्प्रूव भी हुए हैं, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली उसका एडवांटेज बल्कि इंडिया को मिलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। तो मैं मतलब ये मान के चल सकता हूँ दैट नाउ अभी आप जो डाल रहे हो केपेक्स आपका फर्म से FY27-28 बिकॉज कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी, करीब 70-80% से बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका एटलीस्ट कहीं नहीं तो 12 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है साल ईयर ऑन ईयर। हाँ, वो उतना मिनिमम आ जाएगा। इनफैक्ट 15% प्लस ही रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इस 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि स्टील पाइप के अंदर में काफी कुछ फ्रेट के ऊपर में, लॉजिस्टिक के ऊपर में डिपेंड करता है। और मैं आज देखिए ऑल इंडिया में जितने स्टेट है उसमें 65% ही स्टेट को हम लोग कैटर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेट एंड लॉजिस्टिक इश्यूज। सो अभी जो नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जहां हमारी एग्जिस्टिंग नहीं है वहां पे जो है हम लोग प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। इस वजह से जो है वो एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ जो है नया इन्वेस्टमेंट से देखने को मिलेगा। और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर में भी जो DFT और ये जो सेक्शन एंड स्क्वायर पाइप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उससे एक जंप मिलेगा। और कोल्ड रोलिंग फैसिलिटी में भी काफी हद तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है सर, एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सवाल था आपसे। तो जो हम लोग बेंचमार्किंग कर रहे थे विद योर कॉम्पिटिटर्स, तो आपका स्प्रेड दैट इज रियलाइजेशन माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is by far the best in the industry. मोटा मोटी 13,500-14,000 का स्प्रेड रियलाइजेशन माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। बट जब हम ग्रॉस मार्जिन से EBITDA पर टन जाते हैं, आपका ओवरहेड्स पर टन सबसे ज्यादा है। तो इंटरनली आपने सोचा है दैट हाउ टू रिड्यूस इट, या अभी जो 12-15% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी उसमें नीचे कुछ खर्चे नहीं होंगे? नहीं, उसमें क्या है देखिए, मतलब सीधी बात है। आप ओवरऑल देखेंगे जब ऑयल एंड गैस के पाइप बनाओगे, आप हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओगे, आप
तो नेचुरली ओवरहेड ज्यादा लगेंगे। आप सेक्शन पाइप बनाने की कॉस्ट आती है 2,000 रुपये पर टन, वही जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आती है 5,000 से 6,000 रुपया। सो इसकी वजह से है, लेकिन आपको मुझे लगता है नेट में क्या बचा रहे हैं वो देखना चाहिए। अगर आप पर टन एबिटा देखेंगे तो उसके अंदर में आप पीयर से कंपेयर करेंगे 15 से 20% जो है हमारा मतलब मार्जिन जो है बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, एक और सवाल पूछ सकता हूँ बिफोर आई कम बैक इन द क्यू। तो आपका जो पर टन है एंड जो आपने बोला है कि अभी हमारा 5,000 से 5,200 के बीच में होगा, एंड जब हमारा जो नया केपेक्स है बिकॉज वो सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ है, तो जब आप बोलते हो कि हमारा 5,200 से 6,500 या 7,000 पर टन जाएगा इन द नेक्स्ट से FY28 या FY27 तक, उसको मैं कैसे समझूं कि कितना ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट से आएगा और कितना ऑपरेटिंग लेवल से आएगा? ऐसा है कि इसमें सब्सटेंशियली ग्रोस मार्जिन से ही आएगा। हाँ। और जैसे इस क्वार्टर में भी 5,200 रुपया पर टन के आसपास है हमारा। वो तो इबिटा हो गया, तो इबिटा 5,200 से आप 7,000 लेके जा रहे हो। हाँ, उसमें तो पूरे 14,000 से 15,000 स्प्रेड है। नहीं, ग्रोस मार्जिन से ही इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। अच्छा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज को ज्यादा, मतलब आपका जो नीचे के खर्चे हो गए वो बढ़ते रहेंगे? नहीं, इसमें सारे प्रोडक्ट जो हम लोग इन्वेस्टमेंट जो फर्दर कर रहे हैं वो भी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोस मार्जिन में ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये ठीक है, बट आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड जो अदर एक्सपेंसेस है वो सब बढ़ते जाएंगे एज पर? नहीं, वो चलेंगे। देखिए क्या है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस हिसाब से उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन जो सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो ग्रोस मार्जिन में ही दिखेगा। ठीक है, तो मतलब 1-2-2.5% की बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब 23 से 25% जा सकता है ग्रॉस मार्जिन। हाँ, ऐसा है कि ये सब होने के बाद आप, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने पहले भी बताया कि 7,000 रुपया हमारा पर टन इबिटा जो है ये हमारा टारगेट है अगले 2 साल में। हाँ। और मतलब इसमें वॉल्यूम में भी ग्रोथ आएगा, उसके अंदर में जो है काफी हद तक हम लोग जो है जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसके अंदर में भी काफी इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है, तो उसके कारण जो है वॉल्यूम में भी ग्रोथ दिखेगा। ठीक है सर, मैं और सवाल है, मैं वापस से क्यू में आता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, Thank you. A reminder to all participants, to ask a question, you can press star and 1. The next question is from the line of Saransh Gupta from Swan Investment. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. जी। Yeah, thank you sir for the opportunity, and I guess I got disconnected earlier. Sir, so आप जैसे मेंशन कर रहे हैं कि वॉल्यूम में we can see a growth. So can you give us a ballpark number for that? And I have a couple of more questions. So should I like put it ahead? इस साल मतलब इस साल का अभी तक हम लोग जो 6.2 लाख टन कर चुके हैं और 2.6-2.7 के आसपास 9 लाख के आसपास हमारा वॉल्यूम रहेगा फुल ईयर का। And sir, upcoming 2 years, as you mentioned that we can go to a gross margin of 23 to 25% with a EBITDA per ton of 7,000. So by then, what can we see the volume as? नहीं, वॉल्यूम मतलब हमारा अगले 2 साल के अंदर में जो है करीब 6 लाख टन के आसपास का जो है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो उसके अंदर में आप देखेंगे तो क्योंकि ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो स्प्रेड ऑलमोस्ट 3 साल का, तो ऑलमोस्ट हर साल जो है उसी के हिसाब से जो है 50-60% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। तो अगर नेक्स्ट 3 इयर्स का अगर रोड मैप आप पूछेंगे तो करीब करीब जो है हमारा 1.5 लाख टन, 1.5 से 1.25 लाख टन एनुअली बेसिस पे जो है वॉल्यूम ऐड होता रहेगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमारा जीपी फैसिलिटी का स्टेटस क्या, लाइक व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम? तो उसके अंदर में जो है हमने जीपी प्रोजेक्ट वाला जो है
वो ड्रॉप कर दिया और उसके बदले हम लोग लास्ट डाया पाइप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हिंदूपुर में, क्योंकि जीपी पाइप के अंदर में जो इस समय जो इन्वेस्टमेंट कर करके जो उसका आरओआई था वो थोड़ा सब्सटेंशियली ज्यादा समय लग रहा था। तो ऑलरेडी हमारा टाई अप हो गया है, जो जीपी गोयल बनाते हैं तो उनके साथ हमारा एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सर ये as we have seen a decent pickup in the monoblock residential pump, तो इसमें हमारा EBITDA per ton कितना डिफर करेगा जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे, लाइक इफ यू कंपेयर इट विद द एपीआई ग्रेड EBITDA per ton? नहीं, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, 4 महीने हुए, 4 महीने में 6 करोड़ की सेल हुई है। तो इसके अंदर में अभी तो मार्जिन, क्योंकि हम लोग नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पब्लिसिटी और ब्रांडिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो अभी तो 5% मार्जिन पे ही है। बट ये प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है 10-12% मार्जिन जो है इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल लाइटिंग के अंदर में जो है 1500-1600 करोड़ के टर्नओवर में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटे स्केल पे है ये। एंड सर ये जो 10-12% हम कह रहे हैं कि मार्जिन हो जाएगा, बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस? ये थर्ड ईयर में जाकर के जो है हमारी 50-60 करोड़ की सेल होगी, उस लेवल पे जो है 11-12% का मार्जिन होगा। और एक चीज और है जो आज हमने अनाउंस भी की है, बोर्ड ने अप्रूव किया है, हम लोग 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑन डोमेस्टिक वायर बिजनेस, जो करीब 25,000 करोड़ का जो है बिजनेस है देश भर में। और उस सेगमेंट के अंदर में भी हम लोग जो है मतलब इंटर कर रहे हैं। और उसमें अच्छी चीज ये है कि हमारे देश भर में 200,000 आउटलेट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 75-80% आउटलेट इलेक्ट्रिकल आउटलेट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डीलर के थ्रू से ही डिमांड था कि ऑलरेडी वो सूर्य रोशनी के जो है लाइटिंग प्रोडक्ट डील करते हैं, बट समहाउ वायर और उसके लिए उनको दूसरे कंपनी भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो लंबे समय से डिमांड थी, तो आज के जो है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने अप्रूव किया है। सो 25 करोड़ का कैपेक्स है, पहले साल में 100 करोड़ का बिजनेस रहेगा, दूसरे साल में 200 करोड़ का, थर्ड ईयर में 300 करोड़ का। और ग्वालियर जो एग्जिस्टिंग हमारी लाइटिंग की फैसिलिटी है वहीं पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, जो जीएलएस और टीएल और सीएफएल का जो जगह था, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसमें टेक्निकली भी हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग फिलामेंट बनाते हैं ऑलरेडी, जो बल्ब के अंदर में जो फिलामेंट लगता है, तो वायर ड्राइंग का काम ऑलरेडी हम करते हैं, तो बहुत इजीली हम लोग जो है इसको कर पाएंगे। और इसके अंदर में टर्नओवर भी अच्छा है, रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर भी नहीं है। सो एक नई चीज हम लोग आज से इसमें एड ऑन कर रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे गवर्नमेंट ने जेजेएम पे फोकस, दे हैव इंक्रीज द फोकस ऑन जेजेएम, सो उसमें हाउ डू यू सी द टेंडरिंग हैपनिंग इन द कमिंग मंथ्स? लाइक इन लास्ट 1 year द पाइप दैट वी हैव सप्लाइड फॉर जेजेएम, लाइक उसमें कुछ डिले या कुछ स्ट्रेस देखने को मिला है क्या हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल से के रिस्पेक्ट में? सो हम लोग जो है ऑलरेडी लास्ट 2 साल के अंदर में 1 लाख टन के आसपास जो है हम लोग लास्ट डाया पाइप सप्लाई कर चुके हैं। सो जहां तक जेजेएम का सवाल है, ये 2028 तक एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी तक एवरेज ऑल इंडिया में देखिए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेट के अंदर में 40-50% तक ही पहुंचे हैं। सो 3-3.5 साल और अपने को मिलता है, लेकिन इसीलिए हमने जो है अभी ग्वालियर के अंदर में एक नई फैसिलिटी स्पाइरल प्लांट की लगाई है, पार्टिकुलरली फॉर दिस जेजेएम प्रोजेक्ट ओनली। सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है और उसका एडवांटेज जो है हमको मिलेगा। सो 1 लाख टन के आसपास हम लोग कर चुके हैं 1.5-2 साल में। सर जो कैपेसिटी लगाई है, जो हमने फैसिलिटी लगाई है, उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? 60,000 टन पर एनम। बहुत कुछ डिपेंड करता है इसमें, 50,000 to 80,000 भी जा सकता है, साइज के ऊपर में और थिकनेस के ऊपर में डिपेंड करता है। बट एवरेज जैसे हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से 60,000 टन पर एनम ऐसा मान सकते हैं, 5,000 टन महीने का। ठीक है सर, दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल गेट बैक इन द। उसके अंदर में 30,000 प्लस टन के ऑर्डर हमारे हाथ में है। इनफैक्ट इसका कमर्शियल प्रोडक्शन आने में हमको 1-1.5 महीना जो है डिले हुआ, क्योंकि कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इम्पोर्टेड मशीन थी तो, बट वो अभी सब कुछ ठीक हो गया और इसी महीने से हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है सर, that's great. I'll get back in the queue. Thank you. The next question is from the line of Rohan Vora from Envision Capital. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir, you are. Yes. Yeah, sir, thank you for the opportunity. So, sir, earlier comments में आपने कहा कि इस क्वार्टर API पाइप्स की वॉल्यूम थोड़ी स्लो रही, तो ये कब तक ट्रैक पे आ जाएगी वापस वॉल्यूम्स, वो एक सवाल था. और दूसरा, ब्रॉडली API पाइप्स की डिमांड कहाँ से आएगी, बिकॉज वो अपना EBITDA पर टन का एक मेजर ड्राइवर है, तो उसकी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें 5,500 से 7,000 पहुंचना है EBITDA पर टन, तो आपको API पाइप्स की डिमांड कैसी दिख रही है और वो कहाँ से आएगी? थैंक यू. जी, ऐसा है कि इसमें एपीआई के अंदर में भी 2 कैटेगरी के पाइप लगते हैं. एक तो थोड़ा लार्ज आया ERW पाइप, वेल्डिंग पाइप, और दूसरा जो है स्पाइरल पाइप. तो अभी क्योंकि ये बीच में तो जनरल इलेक्शन के कारण जो है 5-6 महीने टेंडरिंग वगैरह नहीं हुए, और अभी वापस से जो है ERW सेगमेंट में ऑलरेडी 2 टेंडर हमें मिल चुके हैं, वो प्रोसेस चालू हो चुका है, और स्पाइरल का भी पाइपलाइन में है. सो जनरली ऑयल एंड गैस सेगमेंट एक बड़ा मतलब, क्योंकि सरकार का ये विजन है कि हर घर में जो है मतलब गैस हम लोग पहुंचाएंगे थ्रू पाइपलाइन, तो उसके अंदर में जो है जो अभी तक तो जो है क्रॉस कंट्री लाइन यानी बड़े पाइप की डिमांड है, और ग्रेजुअली फिर छोटे स्केल के आधे इंच से लेकर के आधा पौना 1 इंच तक का जो है ऑर्डर मिलेगा, जो घरों में डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है. तो ऐसा करके जो है मतलब इसके अंदर में डिमांड मेंटेन रहेगी, और उसके अंदर में बहुत लिमिटेड 4-5 लोग ही जो है मतलब इस कैटेगरी इस सेगमेंट के अंदर में है, क्योंकि इसके लिए हाई स्किल चाहिए और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. ओके, सो ये डिमांड अब अगले क्वार्टर से चालू हो गई. ये इलेक्शन की वजह से रुका था, बट PSU वगैरह दोबारा से मतलब एक्टिव हो गए हैं, और ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं. ओके सर, इसके अलावा अब हमारे EBITDA पर टन के और क्या ड्राइवर्स रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स? एक तो जो हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ एक बड़ा ड्राइवर रहेगा, और दूसरा जो API पाइप जैसा अभी मैंने कहा, तीसरा एक्सपोर्ट सेगमेंट है, क्योंकि कनाडा मार्केट वापस से हमारे लिए खुल चुका है, और कोल्ड रोलिंग के अंदर में भी जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वजह से हमको उसके अंदर में जो भी सेगमेंट हम कैटर करेंगे वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी पे जाएगा, तो वो एक रहेगा. और एक मिडिल ईस्ट में भी सऊदी मार्केट को हमने टैप किया है, वो एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम, और इनफैक्ट उसके अंदर में मार्जिन भी काफी हद तक अच्छा रहेगा. सो ओवरऑल जो है कुछ प्रीमियम सेगमेंट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और जो हमारा जो नया कैपेक्स है, और साथ में जो हमारी कॉस्ट के ऊपर में लगातार जो फोकस रहता है, इन सब की वजह से जो है अपने को एडवांटेज होगा. और एक और चीज, हर प्लांट के अंदर में हम लोग DFT प्लांट भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. थैंक यू सर, आई विल गेट बैक इन द क्यू. Thank you. A reminder to all participants, to ask a question, you may press star and 1. The next question is from the line of Farooq Pandole from Avista Fund Management LLP. Please go ahead. Yeah. Hi Raju ji. Yes. हमको मेरा सवाल ये था कि हमारा नेट कैश पोजीशन क्या है एट दिस पॉइंट, और कैपेक्स next 2-3 this 300 crores we are going to spend over next 3 years, and our capacity, total capacity, steel pipe ka capacity will go to 18 lakh ton, 18 to 19, yeah. और 300 crore 3 साल में खर्च होगा. हाँ जी, हाँ, 2 साल में, नेक्स्ट 2 इयर्स में. नेक्स्ट 2 ईयर. और नेट कैश पोजीशन क्या है अभी? एज ऑन टुडे 225 करोड़. ओके, तो मतलब
we should maintain a net cash position going forward. हाँ, वो मेंटेन रहेगा। और आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। और जो कुछ भी पैसा बचेगा वो सब इन्वेस्टर का ही होगा, वो आपके जेब में ही आएगा। थैंक यू। और ये मतलब इस क्वार्टर Q2 हमारे लिए डिफिकल्ट था, पूरा साल जनरल इलेक्शन था, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें थी। स्टील प्राइस के अंदर में 5 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पे हम लोग खड़े हैं। ट्रम्प साहब आने के बाद अलग ही उनका कानून चल रहा है दुनिया भर में। सो ये सब के बावजूद भी पिछले साल हमने 586 करोड़ का EBITDA किया था। और इस बार जो मैंने पहले भी कमेंट्री में कहा था कि हम लोग पर टन EBITDA से लेकर के करीब पर टन EBITDA 5200-5300 के आसपास करेंगे। लाइटिंग डिवीजन में डबल डिजिट का EBITDA मार्जिन रहेगा, वो 10% प्लस साइड में ही रहेगा। और पूरे साल भर में 590 से लेके 600 करोड़ का EBITDA हम लोग करेंगे, जिसको करने के लिए मुझे लगता है कि क्वार्टर 4 के अंदर में जो है हमारा 200 करोड़ के आसपास EBITDA हम लोग कंपनी एज ए होल करेंगे। तो 600 करोड़ के आसपास का, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज, उसके बावजूद भी हम अपनी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाए हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू और प्रॉफिट 4 साल और 3 साल से रेंज बाउंड है, तो क्लियरली आई थिंक नेक्स्ट 2 साल में इसमें बदलाव आ सकता है। हाँ, उसका 2 रीजन था। मतलब ये जो आपने पूछा, हम बहुत रेंज बाउंड है, मतलब हल्का ग्रोथ मेंटेन कर पा रहे हैं या जो भी नंबर्स थे उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। उसका बड़ा रीजन ये भी था 80-85% कैपेक्स यूटिलाइजेशन पे हम लोग हमारा यूटिलाइजेशन के ऊपर में था और प्लांट यूटिलाइजेशन। तो हमने जो अभी इन्वेस्टमेंट किया है, इसके कारण एक सब्सटेंशियल जंप जो है वॉल्यूम में दिखेगा। ऐसा माल तो वॉल्यूम डिमांड तो है ही, लेकिन हमने इस 4-5 साल में ये भी बहुत सेलेक्टिव हम लोग रहे। थोड़ा हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और हाई मार्जिन वाले में हम लोग थोड़े सेलेक्टिव भी रहे, वो सब भी था। तो ऐसा करके जो है मतलब एक रेंज बाउंड में ही थे, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज आप देखेंगे 5 साल के अंदर में भी हमारी बैलेंस शीट इंप्रूव भी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी भले ही थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन वो हमने मेंटेन करके रखा है। थैंक यू राजीव जी। Thank you. The next question is from the line of Dave from NMR Capital Advisors LLP. Please go ahead. Hello. Am I audible? Hi. Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. I just wanted to ask this 25 CR capex that we are doing in a while. Dev sir, you're not sounding very much clear. There's a lot of echo there. Just a second. Hello? Yeah, that's much better. Please proceed. Yeah. I just wanted to ask that 25 CR capex we are doing in the wire business, is that included in the 500 CR capex plan or is it apart from that? एडिशनल है, वो एडिशनल है। वो आज ही हमारे वो पहले प्लान में नहीं था, वो आज ही अप्रूव किया है 25 करोड़ का कैपेक्स। My second question was कि मतलब सूर्य रोशनी जो स्ट्रक्चरल पाइप बनाता है, तो क्या वो प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में भी यूज होता है क्या वो पाइप्स? हाँ, होते हैं ना। ओके, थैंक यू। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Aditya Pal Singh Jaggi from MSA Capital's partner. Please go ahead. Hi, thank you so much again for the follow-up. Sir, अगले साल मतलब FY26 में हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि एवरेज क्वार्टरली रन रेट, वॉल्यूम रन रेट 220,000 से 2.5 लाख टन का कर सकते हैं? हाँ, क्वार्टर में हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग का H2 हेवी होता है, बट ऑन एन एवरेज 2.5 लाख कर सकते हैं ना? हाँ। और सर, ये जो एक्सपोर्ट है हमारा पिछले साल कुछ 1,200 करोड़ था, 1,167 करोड़। अगले 3 साल में बिकॉज हमारा अच्छा खासा केपेक्स भी आ रहा है, एपीआई में भी आ रहा है, आपके हिसाब से, बिकॉज आप बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इन मिडिल ईस्ट एंड कनाडा काफी अच्छा है, ये कैसे स्केल अप हो सकता है? मतलब अगर मैं बोलूं कि 1,100 किधर जा सकता है, say by FY27?
नहीं, इस साल भी जो है हमारा करीब 1100 करोड़ के आसपास होगा, 1000 करोड़ के मुकाबले, और हम लोग 15-16% ओवरऑल स्टील सेगमेंट का जो है एक्सपोर्ट से आता है। तो हर साल मान के चलिए आप 125-150 करोड़ का जो है वैल्यू एड होगा इसके अंदर में। ठीक है। और सर ये क्योंकि आपका स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स सबसे मेजर सेगमेंट है, तो अगर आप बोल रहे हो दैट मोटा मोटी हम 6-6.5 जाएगा FY27 में, तो मैं ये पकड़ सकता हूँ कि आपका जो इबिटा है और एन एब्सोल्यूट लेवल वो कंसिडरेबली इम्प्रूव हो सकता है, 750 से 800 करोड़ तक जा सकता है। ये मानना सही है मेरे को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे पास ऑल क्वेश्चंस है, मैं आई जस्ट ईमेल इट टू यू। ठीक है, जरूर। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. A reminder to all participants, to ask a question, you may press star and 1. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may press star and 1. A reminder to all participants, to ask a question, you may press star and 1. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for closing comments. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank to our MD sir and the CEOs for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, contact our SGA, our investor relation advisor. Thanks. Good evening to all. Thank you very much. Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.